Wish a good day to everyone. Let's begin our today's session of English online class. Today we are going to read lesson number 3, The Fun They Had. It is written by American novelist Isaac Asimov and he was quite famous for his science fictions. Before starting the lesson class, let us go through the heading, The Fun They Had. Fun means maza. The fun they had means उनके पास जो मजा था. They had जो मजा था. Now let's move for pre-reading task. It's such an interesting activity. You are having a look at the picture of a school and here few questions are arisen for you to answer. At what time do you go to school? आप कितने बजे स्कूल जाते हैं? Do you like going to school? Why and why not? आप स्कूल जाना पसंद करते हैं? क्यों and why not? क्यों नहीं? If no, then why not? How many hours do you work on a computer in your school? आप अपने स्कूल में कितनी देर तक कंप्यूटर पर काम करते हैं? Would you like to work longer? आपको ज़्यादा देर काम करना पसंद है? Next is, what would you prefer studying at home or going to school? Which is your choice? Do you like vacations? Why? And how long does it take you to reach your school? Do you enjoy the journey? You have to answer. Do you enjoy the journey to move to school? What would happen if your teacher were replaced by computers? Would you like to replace your teachers with computers? Now, work with your partner and give your responses. Now, let's move for the reading. Now, read this story by Isaac Asimov about the school experience of two children living in 2155. Now in this story we are going to study about school experience of two children, but they are not the children of this year. They belong to the children of 21 and 55. Now class 2021 is going on and we are going to study about the time 134 years जो अभी आने वाले हैं 134 years ahead. Now it means that this lesson is related to our future and it is related to the world when there will be no paper and everything is digitalized, every work is done by the computer. The world has become on that time computerized in every aspect. So let us start the reading. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने इसके बारे में उस रात को अपनी डायरी में लिखा था. On the page headed 17th May 2155, she wrote, today Tommy found a real book. और उसने अपने पेज के ऊपर जो डेट डाली थी that was 17th May 21 and 55. Yes class. It means on the page. On the page means it is not the simple pages. As I have told you that we are talking about the time when these pages will disappear. No work will be done on the pages. Everything will be computerized. So she was writing her diary on the computer. She wrote, Tommy. Today Tommy found a real book. अब मार्गी ने मेंशन किया था कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली थी. Now you have to notice the word real. Real means जो book जो real book है. It means that is not computerized book. That is the printed book as you are reading. जो book अब आप पढ़ रहे हैं ना वो मिली थी टॉमी को. मार्गी का फ्रेंड है टॉमी, उसको मिली थी. And मार्गी is considering that book a real book. In the next line, it was a very old book. यह एक बहुत पुरानी बुक थी. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने मार्गी को एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब जो उनके दादाजी थे उन्होंने बताया था कि एक ऐसा समय था जब सभी स्टोरी सभी कहानियां जो कि है वो पेजेस के ऊपर पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी. लाइक क्लास यू आर सीइंग योर बुक प्रिंटेड बुक. सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस बुक विच यू आर रीडिंग. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज दे टर्न्ड द पेजेस.
वो पेजेस को टर्न करते हैं, पलटते हैं। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि येलो हो चुके हैं और क्रिंकली हो चुके हैं। क्रिंकली मीन्स उनके ऊपर रिंकल्ड पड़ गई हैं। जब स्टूडेंट्स कोई बुक बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो ऑफकोर्स उसके पेजेस जो हैं वो येलो कलर की हो जाते हैं एंड वो उनके ऊपर रिंकल्स पड़ जाती हैं, वो मुड़ जाते हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। और सबसे ज्यादा जो मजाक की बात क्या है, awfully reading means बहुत ज्यादा मजाक की जो बात है कि उन वर्ड्स को रीड करना that stood still, जो कि बिल्कुल स्टिल पड़े हुए हैं, instead of moving the way they were supposed to on a screen, जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर वर्ड्स मूव करते रहते हैं एंड बुक में वो वर्ड्स बिल्कुल स्टिल पड़े हुए हैं। So it was very amusing, it was very awfully funny for Margie and Tommy to look at these words. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और जब वो पिछले पेज पर वापस जाते हैं, वो पेज को पीछे उसको बैक करते हैं, तब वो पाते हैं कि वो सेम वर्ड्स उसी जगह पर रिटर्न है जहां पर उन्होंने उन्हें पहली बार पढ़ा था। गी सेट टॉमी, अब टॉमी कहता है गी मीन्स डिससेटिस्फाइड, उसे अच्छा नहीं लगता टॉमी को। व्हाट अ वेस्ट, कहता है क्या बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, इट मीन्स कि जब आप बुक को पढ़ लेंगे तो आप क्या करेंगे, इस बुक को फेंक देंगे। दिस बुक वुड बी ऑफ नो यूज फॉर यू, आई गेस, कहता है ऐसा मैं मानता हूं। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, और कहता है हमारी टेलीविजन जो स्क्रीन है उसके ऊपर मिलियन बुक्स हैं एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये और भी ज्यादा बुक्स के लिए अच्छी है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे कभी भी बाहर नहीं फेंकूंगा। अब टेलीविजन स्क्रीन का मतलब है स्टूडेंट जो उनकी कंप्यूटराइज्ड जो स्क्रीन है, जो उनकी डिजिटल स्क्रीन है। एंड यू विल कम टू नो अबाउट दिस दैट जो उनकी रोबोटिक टीचर जो उन्हें टीच करता है उसके ऊपर जो स्क्रीन बनी है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट टेलीविजन स्क्रीन। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अब जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है और उसने अभी तक उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देखी हैं, बिकॉज टॉमी जो है वो मार्गी से 2 साल बड़ा है। मार्गी की एज 11 है एंड टॉमी इज ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड, वो 13 ईयर्स का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब मार्गी क्वेश्चन करती है तुम्हें यह बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, अब टॉमी आंसर करता है मेरे घर पर। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, अब जो टॉमी है वो मार्गी की तरफ देखता नहीं है बिकॉज वो बुक को पढ़ने में बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो उसे बिना देखे आंसर करता है मेरे घर पर। इन द एटिक, एटिक में, अब स्टूडेंट्स एटिक वो प्लेस है अ रूम एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, छत पर जो एक रूम बना होता है उसको हम एटिक बोलते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, अब मार्गी फिर से क्वेश्चन पुट करती है यह किसके बारे में है। देन टॉम आंसर्ड स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, अब मार्गी जो है ना बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं फील होता इस बुक में। स्कॉर्नफुल मीन्स अनइंटरेस्टेड, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करती है। स्कूल कहती है स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कहती है स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, अब जो मैकेनिकल टीचर होता है मार्गी का वो उसे ज्योग्राफी के टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और मार्गी कैसा परफॉर्म कर रही थी, बुरे से भी बुरा, हर बार वो बुरा परफॉर्म कर रही थी। until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहा, जब तक कि मार्गी की मदर ने बिल्कुल सॉरोफुली होता है दुख में, नाराजगी में मार्गी के सर को शेक नहीं कर दिया, उसके सर को पकड़ के हिला नहीं दिया और उन्हें जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज नहीं दिया। किसे, मार्गी को भी और उसकी मैकेनिकल टीचर को भी। नेक्स्ट इज he was a round little man, अब वी आर हैविंग द अपीयरेंस ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर। बेटा काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो रॉबर्ट्स को ठीक करता है, रॉबर्ट से डील करता है, आप कह सकते हैं एक तरह का रॉबर्ट मैकेनिक है। काउंटी इंस्पेक्टर इज अ रॉबर्ट मैकेनिक। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटे कद का राउंड पर्सन था, विद अ रेड फेस, और उसका चेहरा कैसा था, रेड था।
एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक पूरा बॉक्स था जो भरा हुआ था डायल्स के साथ और वायर्स के साथ। He smiled at her and gave her an apple. जब वो मार्गी को देखता है काउंटी इंस्पेक्टर तो वो स्माइल करता है उसके साथ और उसे खाने के लिए एक एप्पल देता है। Then took the teacher apart, और फिर वो इस मैकेनिकल टीचर को दूर ले जाता है मार्गी से। Now you can see Margie is eating an apple and वो मार्गी को दूर ले जाता है। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. अब मार्गी ऐसी इच्छा करती है, ऐसा विश्वास करती है कि काश ऐसा हो जाए कि जो ये काउंटी इंस्पेक्टर है इसे पता ही नहीं चले कि पुट इट टुगेदर, कि किस तरह से इस मैकेनिकल टीचर को ठीक करना है। मार्गी ऐसा होप करती है। नाउ कम एट द नेक्स्ट पेज। बट ही न्यू हाउ टू सेट इट ऑल राइट। बट काउंटी इंस्पेक्टर का तो वर्क ही था रॉबर्ट्स के साथ डील करना, उसे पता था कि इसे कैसे ठीक करना है। आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो बिल्कुल ठीक कर देता है मैकेनिकल टीचर को। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद द बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अब 1 घंटे के बाद क्या होता है, वो बिल्कुल रोबोटिक टीचर बिल्कुल वेल एंड परफेक्ट हो जाता है। अब हम अपीयरेंस को देखेंगे रोबोटिक टीचर की। लार्ज बहुत बड़ा, एंड ब्लैक ब्लैक कलर का, अगली मीन्स दैट इज नॉट ब्यूटीफुल, अगली लुक है उसका, विद अ बिग स्क्रीन, और उसके ऊपर बहुत बड़ी स्क्रीन बनी हुई है जिसके ऊपर सभी लेसन जो हैं वो शो होते हैं। एंड द क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस हैं वर आस्क्ड, क्वेश्चंस पूछे जाते थे उस रोबोटिक टीचर की बिग स्क्रीन के ऊपर। That wasn't so bad. अब मार्गी कहते हैं ये भी इतना बुरा नहीं है। द पार्ट शी हेटेड, और उसे जो सबसे ज्यादा जो बुरा पार्ट लगता है रोबोटिक टीचर का, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उसे रोबोटिक टीचर का वो जो स्लॉट वाला पार्ट है ना, एक पंचिंग पार्ट होता है बेटा, जहां पर उसे अपने जो होमवर्क है और जो टेस्ट है वो सबमिट करने पड़ते हैं, वो उसे सबसे ज्यादा बुरा लगता है मार्गी को। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। अब उसे हमेशा अपने आंसर्स को या होमवर्क को उस पंच कोड के ऊपर लिखना पड़ता था। दैट मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, जो कि उसने लर्न कर लिए थे कि कैसे लिखना है, उसने सीख लिया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब मैकेनिकल टीचर तो रोबोट है, कंप्यूटर से बिलोंग करता है, तो वो कुछ ही समय में जो है वो मार्गी के मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था कि कितने मार्क्स आए हैं। इट टेक्स नो टाइम टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ मार्गी। The inspector had smiled after he was finished and patted her head. अब जब काउंटी इंस्पेक्टर है वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है तो वो स्माइल करता है और प्यार से मार्गी के सिर पर थपथपाता है। पैटेड होता है प्यार से, जब आप सिर पर ऐसे थपथपाते हैं। He said to her mother, अब वो मार्गी की मम्मी से कहता है, It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. Mrs. Jones, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। I think the geography sector was geared a little too quick. कहता है मुझे ऐसे लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था ना वो थोड़ा सा ज्यादा आगे चला गया था। Those things happen sometimes, कहता है ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। I have slowed it up to an average, कहता है अब मैंने इसे स्लो कर दिया है, किस एवरेज तक रखा है, 10 ईयर लेवल तक, 10 साल के लेवल तक मैंने इसे एवरेज कर दिया है इसके ज्योग्राफी के सेक्टर को। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। अब वो मिसिस जोन्स को बताता है, मार्गी की मदर को, कि जो उनकी बेटी की ओवरऑल प्रोग्रेस है ज्योग्राफी में वो सेटिस्फैक्टरी है। और ये कहने के बाद वो मार्गी के सर पर दोबारा से प्यार से थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी जो है वो निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब वो चाह रही थी कि जो ये काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसकी मैकेनिकल टीचर को दूर ले जाए। They had once taken Tommy's teacher away for nearby a month because the history sector
हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। जैसे कि एक बार वो टॉमी के टीचर को, टॉमी को भी मैकेनिकल टीचर ही टीच करता है, रोबोटिक टीचर ही पढ़ाता है, तो कहता है जैसे एक बार टॉमी के जो रोबोटिक टीचर है उसको दूर ले जाया गया था, और कितने टाइम के लिए, फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया था। क्यों? व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज ही इज, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। कंप्लीटली मीन्स बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, वाइप आउट हो गया था। सो उसको मैकेनिकल टीचर को 1 मंथ के लिए दूर ले जाया गया था। सो क्लास, वी आर गोइंग टू सम अप अवर वीडियो अप टू हियर and we will continue the rest of the lesson in our next video. Thanks for watching the video, class. Good.